Hello students, how are you all? So today we will read this chapter, The Toy Box. So at first write today's date and classwork. Now let's start. Don't look, said father as he eased the car into a lower gear. He and mother were sitting in the front, Matilda and I in the back. The tires made a pleasing crunch as they passed over the gravel. Father drove steadily, trying not to scatter the stones over the well manicured lawn on either side of the narrow drive. I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you, said father. कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है? कहानी की शुरुआत में एक परिवार जो है वो एक घर में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर करते समय परिवार में जो माता और पिता, फादर और मदर जो है वो कार के फ्रंट सीट में बैठे हुए हैं और बच्चे जो ये स्टोरी कह रहे हैं राइटर और उनकी सिस्टर माटिल्डा ये कहाँ बैठे हुए, कार की पीछे की सीट में बैठे हुए हैं। फादर ने क्या कहा है कि फादर ने बच्चों को कहा है कि अपनी आंखें बंद रखें जब तक क्या हो वो उनको आंखें खोलने के लिए नहीं कहते। गाड़ी क्या हो रही है, जब घर के अंदर घुस रही है, घर के गेट में जब एंटर कर रही है, तब किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है? पत्थरों की, कंकड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। Although we were excited at the prospect of seeing our new house, we did as we were instructed. Mother had told us the week before that suitable accommodation had been found and that we would be moving in today. Father had said little. बच्चे जो है क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे अपना नया घर देखने के लिए। साथ ही साथ उनकी मदर ने उनके इस नए घर के बारे में पहले भी कुछ बताया था कि वो नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। You will see when we get there, he said in answer to our questions. और जब भी वो अपने फादर से कुछ पूछते थे तब क्या कहा था उनके फादर ने कि जब हम वहाँ जाएंगे तब तुम देख लेना। The packers had been busy during the previous week. It had been fun living with boxes everywhere. Then suddenly our magical playground had been whisked away and we were left with a few suitcases. परिवार का कुछ दिन कैसा जा रहा था? बड़ा ही बिजी गया था। साथ ही साथ उनके घर में क्या हो गया था? कई सारे सामान थे जो कि देखकर बच्चों के लिए एक नया अद्भुत सा प्लेग्राउंड सा बन गया था खेलने के लिए। The large gates we had passed through a little earlier were impressive and the gardens magnificent. Spring blossoms were everywhere, birds twittered in the trees and bees buzzed about the flowers. But now, as we listened to the crunching gravel with our eyes shut, the suspense became intolerable. You can open your eyes, announced father at last as the car ground to halt. घर का जो गेट है वो कैसा है? घर देखने में कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड है लेकिन उनकी आंखें बंद है। कंकड़ों की आवाज़ सुनाई देने के बाद उनका जो एक्साइटमेंट है वो कैसा हो जा रहा है? बिल्कुल उनका जो उत्साह है वो और भी बढ़ रहा है। और इसके बाद जब गाड़ी रुकती है तब उनके फादर उन्हें कहते हैं आंखें खोलने के लिए। Wow, beautiful, said Matilda as we looked at the house for the first time. Wow, scary, said I. The rambling mansion that stood before us seemed to tower into the sky. It was immense, it was old, and to me it seemed spooky. घर देखते ही सिस्टर माटिल्डा को घर जो है वो बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे जो राइटर है इन्हें वो घर कैसा लगता है? उन्हें घर डरावना लगता है क्योंकि वो घर कैसे रहता है? बहुत पुराना और दिखने में उन्हें कैसा लगता है? डरावना लगता है। There's nothing scary about it. You will have a great time here, said father. There's a plenty to explore. I haven't seen the whole of it myself. Father, mother and Matilda went straight into the house, but I, a little enthusiastic, followed in my own time. I caught up with the others in the spacious living room. Father उनको कहते हैं कि इस घर को लेकर डरने की कोई बात नहीं है और कहते हैं कि यहाँ पे अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने भी ये घर अभी तक पूरा नहीं देखा है। ऐसा कहते हुए फादर, मदर और माटिल्डा सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और जो राइटर है वो क्या होते हैं बाद में धीरे धीरे लिविंग रूम में जाते हैं।
Your bedrooms are upstairs, announced mother excitedly, and there's a large room at the side of the house on the ground floor which you can use as a playroom. She led the way along a dark corridor and we followed. The playroom was indeed large, but it seemed cold and damp. घर के अंदर जाते ही उनकी जो मदर है बच्चों की, वो उनसे कहती है कि उनका कमरा कहाँ है, ऊपर है, और साथ ही साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा है जो कि वो अपने खेलने के लिए एज ए प्ले रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कहकर उन्हें कॉरिडोर से होते हुए उनको उस कमरे की ओर लेके जाती है। जो प्ले रूम है वो कैसा रहता है, वो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन कैसा लगता है, बिल्कुल कोल्ड और डैम्प सा फील होता है वहाँ जाने के बाद। वी विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम, Tom, father assured me, noticing that I had shuddered. He went on to explain, because no one has lived here for some time. The heating has been turned off. There's plenty to discover, and you will have fun finding out where all the rooms are. प्ले रूम में जाने के बाद जो फादर है, फादर क्या कहते हैं, राइटर्स, उनका नाम क्या है, टॉम, उनसे कहते हैं कि यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। ये जो कमरा है क्या है, काफ़ी समय से बंद होने की वजह से, इस घर में काफ़ी समय से लोग ना रहने की वजह से घर कैसा हो गया है, ठंडा हो गया है। यहाँ पे हमारे रहने से क्या होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखने के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। An hour later, when we had been through the house from top to bottom, up staircases and down others, and in and out of umpteen rooms, we returned to the playroom. ऐसा कहने के बाद वो पूरा घर घूमते हैं, पूरा घर घूमने के बाद वो कहाँ जाते हैं, वापस प्ले रूम में आ जाते हैं। Our large toy box had been placed against the far wall of the room, and Matilda went straight to it to unpack some toys. She took out what she needed, and then, answering a call from mother upstairs, ran off to find out why she was being summoned. कुछ घंटे के बाद, लगभग एक घंटे के बाद, जब वो सब जगह देख लेते हैं, अपने कमरे में प्ले रूम में वापस जाते हैं, वहाँ पे उनका एक बड़ा सा टॉय बॉक्स रखा रहता है, जिसमें से माटिल्डा जो है वो अपने खिलौने निकालती रहती है। खिलौने निकालते वक्त क्या होते हैं, उनको उसकी मदर का क्या आता है, उसको कॉल आता है, मदर जो है उसकी बुलाती है और वो जाती है देखने के लिए। I stood in silence alone in the large room. It was then that I heard for the first time a feeble cry followed by a long moan. It seemed to come from the box, but this was just not possible. इसके बाद टॉम जो है वो कैसा होता है, रूम में अकेला रह जाता है, और तब क्या होता है, पहली बार उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कैसी आवाज़, एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कैसा लगता है कि उस बॉक्स में से आ रही है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। Perhaps a cat has entered the room, I thought to myself, or it's my imagination. और फिर वो सोचने लगता है कि शायद किसी कैट की आवाज़ होगी, या ऐसा मेरा इमेजिनेशन होगा, शायद मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ। I pulled a couple of toys from the box, but when I heard the cry again, I screamed, dropped the toy truck I had been holding, and fled, and I found Matilda and mother upstairs in my bedroom. इसके बाद वो क्या करते हैं, बॉक्स में से अपने खिलौने निकालने लगते हैं, और तभी उनको रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, और क्या होता है, उसके हाथ से खिलौना जो है वो गिर जाता है, और वो दौड़कर क्या होते हैं, माटिल्डा और अपनी मदर के पास चले जाते हैं। My suitcase and a couple of boxes containing clothes, more toys and books were lying on the floor beside the bed. Mother was unpacking a smaller case on the bed. I began to help her put away some of my clothes in a large cupboard that was standing against one wall. I paused by a window to look at the garden outside. It was bright, warm, and everything looked green. और कमरे में जाते ही, ऊपर कमरे में जाते ही देखते हैं कि उनकी जो मदर है वो भी क्या कर रही है, सामान अनपैक कर रही है, उनके कपड़े निकाल रही है, और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, विंडो से बाहर की ओर देखने लगते हैं। बाहर कैसा लग रहा है देख के, बाहर बिल्कुल ब्राइट और वार्म क्लाइमेट लग रहा है, और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ ग्रीन नज़र आ रहा है। I wanted to be out there, not in this dark house with its cold echoing rooms and strange sounds. और जो टॉम है वो बाहर
जाना चाहता है बाहर, उस फ्रेश जगह पे जाना चाहता है, इस ऐसी जगह पे जो कि इस तरह के घर में जहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही, यहाँ पे नहीं रहना चाहता। यू आर वेरी क्वाइट टॉम सेड मदर, इज़ समथिंग द मैटर, आई डोंट लाइक इट हेयर, आई मटर। तभी उसकी मदर जो है टॉम की पूछती है कि तुम इतने शांत क्यों हो, और वो कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वाई एवर नॉट, आस्क्ड मदर कमिंग ओवर टू जॉइन मी बाय द विंडो। इट्स कोल्ड एंड स्पूकी, आई रिप्लाइड, एंड आई डोंट लाइक द नॉइजेज इट मेक्स। नॉइजेस, आस्क्ड मदर एस्टोनिश्ड, व्हाट नॉइजेस। और तभी जो है टॉम बताते हैं कि यहाँ पे जो आवाज़ें हो रही है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, और उनकी मदर पूछती है कि कैसी आवाज़ है। आई हर्ड सम नॉइजेस मोर्निंग कमिंग फ्रॉम आवर टॉय बॉक्स, आई रिप्लाइड। डोंट बी सिली सेड मदर, कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, डोंट बी सच अ स्केडी कैट, माटिल्डा विल कम टू and I will get Dad too if you insist. We went downstairs and entered the playroom. We stood and listened. We heard nothing. टॉम से उसकी बात सुनने के बाद उसकी जो मदर रहती है वो उसको बोलती है कि तुम इतने डरपोक मत बनो, हम जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और वो जाते हैं डाउनस्टेयर्स में जाकर, प्ले रूम में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। The sound you heard must have come from outside, said mother, a gurgling pipe perhaps. No, I said with some force as I backed out of the room. It was a cry, a moan, I am sure. आवाज़, किसी तरह की आवाज़ ना आने की वजह से उसकी जो मदर है वो बोलती है कि शायद वो आवाज़ बाहर से आई होगी या किसी और चीज़ की आवाज़ होगी। लेकिन टॉम जो है वो कहता है कि नहीं, वो किस चीज़ की आवाज़ थी, वो किसी तरह के रोने की आवाज़ थी। Over the next few days we settled in. I should say the rest of the family settled in. I was far from settled. I heard the cries whenever I went into the playroom and approached the toy box, and each time I heard the cries, I screamed, but when the others came running to listen, there were no sounds at all. इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद घर के सभी मेंबर क्या होते हैं, धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। लेकिन जब भी टॉम क्या होता है प्ले रूम में जाता है तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और ख़ासकर जब अपने टॉय बॉक्स के पास जाता है तो उसे क्या होती है, रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ज़ोर से चिल्ला उठता है। लेकिन जब उसके घर वाले उसके पास आते हैं तब उन्हें रोने की वो आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। By the end of the week, everyone was most annoyed with me. They came running to the room whenever I screamed. My parents did not believe me and assumed I was making up the story to get their attention. My sister blamed me for the moodiness of my parents and said that we might lose the use of the room for our entertainment if I kept this up. इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सब जो है वो क्या होते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं टॉम से। सबको ऐसा लगता है कि क्या होता है, टॉम जब भी चिल्लाता है तो सब उसके पास दौड़ते दौड़ते आते हैं, लेकिन आने के बाद देखते हैं कि वो जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा सबको लगने लगा कि वो शायद सबका अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के ऐसा कर रहा है। और क्या होता है, इसकी वजह से सब दुखी होने लगते हैं या फिर सबको परेशानी होती है। माटिल्डा जो है वो भी कहती है कि अगर तुम इस तरह से करते रहोगे तो हमसे ये कमरा खेलने के लिए अब नहीं दिया जाएगा। One morning, determined not to scream, I plucked up the courage to enter the playroom. I had avoided it for 3 days, but now my mind was made up. I would get to the bottom of the mystery and not scream. The curtains in the room were drawn, so it was dark and musty in there. फिर क्या होता है, एक सुबह टॉम जो है वो सोच लेता है हिम्मत करके कि मैं प्ले रूम में जाऊँगा और वहाँ पे जाकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊँगा, और वहाँ पे ऐसा कौन सा रहस्य, ऐसा कौन सा सीक्रेट है, ये मैं ज़रूर देखूँगा। As I entered the room, I felt a draught of air. The windows were firmly shut, so was the front door. Wondering where the draught was coming from, I drew open the curtains. Sunlight flooded into the room, but it still felt chilly. The light, however, had given me some courage. I approached the toy box quietly and cautiously. As I drew near, I felt tracks. A moan floated up from the box, but I held my breath and did not cry out. I backed silently out of the room and once in the hall hastened to find my mother.
और क्या होता है, वो वापस टॉय बॉक्स के पास जाता है। इस बार शांत रहने की कोशिश करता है और जाने के बाद उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। जब आवाज़ सुनाई देती है तो इस बार वो क्या करता है, इस बार वो चिल्लाता नहीं है, वो चुपचाप कमरे से निकलकर अपनी मदर के पास चला जाता है हॉल में बताने के लिए। आई फाउंड मदर एंड मार्टिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन, हरी कम विथ मी, आई अर्ग बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड। और मदर के पास, अपनी माँ और मार्टिल्डा के पास जाने के बाद कहते हैं कि मेरे साथ चलो लेकिन कोई शोर मत करना। Looking puzzled, they followed me to the playroom with my finger over my lips. I tiptoed across the floor and towards the box. They followed closely and silently. क्या होता है, इसी तरह से उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपने लिप्स पे फिंगर रख के धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसते हैं और उस टॉय बॉक्स के पास जाते हैं। और उसके माटिल्डा और उसकी माँ भी क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। जैसे ही वो बॉक्स के पास पहुंचते हैं, उन्हें क्या सुनाई देता है, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन सम मम्बलिंग, एन एडल्ट वॉइस सेइंग समथिंग, अ फर्दर क्राई फॉलोड फाइनली बाय माई स्क्रीम विच आई हैड कंट्रोल टिल देन बट नाउ could hold back no longer. We stood there for a moment, breathing softly, listening intently, but heard nothing more. इसके बाद क्या होता है, रोने की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही साथ किसी बड़े की बात करने की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके बाद टॉम से और कंट्रोल नहीं होता और वो चिल्ला उठता है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए वहाँ रुके रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। Father entered the room at a gallop. What's going on here? He asked abruptly. What has happened? तभी क्या होता है, उनके जो फादर हैं वो जल्दबाजी में कमरे के अंदर घुसते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। He paused in mid-flow, noticing us standing in silence. Mother indicating with one finger to her lips from him to be quiet. जैसे ही वो कमरे में घुसकर बोल रहे थे, क्या होता है कि वो बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाते हैं। जैसे वो देखते हैं कि वहाँ पे सब शांति से खड़े हुए हैं और उसकी जो मदर है वो क्या करती है, उसे इशारा करके अपने लिप्स पर उंगली रख के उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। We left the room and proceeded in an orderly fashion to the living room where mother explained what had happened. Well, you wait here, said father when he had heard the story. I will investigate. इसके बाद कमरे से निकलने के बाद सारी बात उनकी जो मदर है सब बताती है और उनके फादर कहते हैं कि ठीक है, आप तुम लोग यहाँ रुको, अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। Father marched out of the room purposefully. After a moment, we heard the box being dragged over the wooden floorboards in the playroom. After a while, father joined us again. कुछ देर के बाद जो फादर है वो जाकर बॉक्स को हटाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उनके पास आते हैं। Come with me, he said, going towards his golf bag in the hall. I think it's high time we had a good look at the old storerooms and coal bunker at the side of the house. I found an air vent in the hall, hidden behind the toy box. We will find out where it goes, and just in case I am taking a golf club. फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैंने और कहते हैं कि अब हमें देखना होगा, अब हमें पुराने जितने भी स्टोर रूम और कोल बंकर हैं वो सब देखने होंगे। मैंने देखा कि टॉय बॉक्स के पास क्या है, एक एयर वेंट है और अब हम जाके देखना होगा। और साथ में उसने क्या किया, अपने साथ एक गोल्फ क्लब ले लिया, यानी कि एक गोल्फ स्टिक ले ली। फादर सिलेक्टेड अ 3 आयरन एंड लेड द वे, स्विंगिंग इट इन द एयर। उन्होंने किस तरह की गोल्फ स्टिक ली, उसका नाम क्या था, 3 आयरन। We crunched over the gravel, passed through a narrow gap in the thick hedge surrounding the side garden and approached the part of the house adjacent to the playroom. There were hundreds of broken tiles, old door and window frames, a rusting bicycle and other unwanted and broken pieces of furniture piled against the wall and scattered over that part of the garden. फिर क्या होता है, वो उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे कई सारे पुराने टूटे हुए टाइल्स, दरवाजे और बहुत सारी पुरानी चीज़ें उन्हें वहाँ पे पड़ी हुई मिलती हैं। We will have to get all the rubbish removed, said father, picking his way through the debris. ऐसा देखकर उनके जो फादर हैं वो कहते हैं कि हमें
ये सब यहाँ से क्या करना होगा, हटवाना होगा, साफ़ कराना होगा. All this must have been cleared out of the house when it was renovated. What a mess. We could see two windows low down on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. The path to the door was clear, so it was obvious that someone had used the doorway quite recently. क्या देखते हैं वो, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि नीचे सबसे पहले उन्हें क्या देखते हैं, 2 खिड़कियाँ दिखती हैं और एक नीचे जाने का एक रास्ता दिखाई देता है उन्हें. Father clambered down the few steps to the door. Mother Matilda and I stood at the top, wondering what he would do. Father rapped on the door and with his golf club and called out, "Hello, is anybody there?" क्या होता है, फादर जो है वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और बाकी तीनों बाहर ही इंतज़ार करते रहते हैं. नीचे जाते हैं वो किसके साथ, अपनी गोल्फ क्लब लेकर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि यहाँ पे क्या कोई है. There was no answer. He rattled the rusty doorknob and struck the door again with his club. Then he turned the knob and the door creaked open. ऐसा पूछने के बाद किसी तरह की आवाज़ नहीं आती. वो क्या करते हैं, वो वापस उस रस्टी डोर नॉब को देखते हैं और दरवाजे को क्या करते हैं, खोलते हैं. The light from the open door and the windows on either side of it filtered into the room. There was some movement inside and father stood back with his club raised. We could hear a tearful woman's voice. क्या होता है, दरवाज़ा खोलने पर बाहर की रोशनी अंदर पड़ती है और उन्हें कुछ मूव होती हुई कोई चीज़ महसूस होती है कि अंदर कुछ है, ऐसा उन्हें महसूस होता है. और फिर उन्हें एक औरत आवाज़ सुनाई देती है. प्लीज़ सर, वी डू नॉट मीन एनी हार्म, शॉप द वुमन. और वो जो महिला है वो दुखी होते हुए रोते हुए कहती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते. हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, डिमांडेड फादर. तभी उनके जो फादर है वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो. We have nowhere to live, sir, explained the woman. We found this place by chance and moved in for shelter. We have been living here for some weeks now. और वो बताते हैं कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, कुछ समय पहले हमें ये जगह अचानक से मिली और हम यहाँ पे कुछ हफ्तों से हैं. Who is with you, asked father. फादर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है. My little child, cried the woman, turning to look towards a cot which stood against the wall behind her. She is not well, sir, because of the dam. She cries a lot and my husband Jack has gone to the village to fetch her some medicines. वो बताती है कि उसका एक छोटा बच्चा उसके साथ है और कहती है कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डैम है इसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत रोती रहती है. और मेरे जो हस्बैंड है जैक, वो गांव गए हैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाने. Well, the mystery of the morning toy box has finally been solved, I thought to myself as we stood there looking sadly at the wretched woman. इसी तरह से वो जो मिस्ट्री थी, इस तरह के एक टॉय बॉक्स की रोने की आवाज़ की, वो फाइनली सॉल्व हो जाती है. They will stop complaining about my vivid imagination now. Mother took charge of the situation immediately. 1 month later, the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1 महीने के बाद वो जो बच्चा है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और बाहर धूप में खेलता रहता है. उसकी हंसी चारों ओर गूंजती है. The woman Frances was employed to help in the house. Her husband Jack was given the job of gardener and handyman. The coal bunker and storerooms were cleaned, damp proofed and painted. इसके बाद जो वो महिला रहती है फ्रांसिस, उसको घर में मदद करने का काम दिया जाता है. उसके हस्बैंड जैक को घर में गार्डनर का काम दिया जाता है. इसके बाद उस घर में वो जो कोल बंकर और स्टोर रूम था उसे भी साफ़ सफाई की जाती है उसकी. The rubbish from the side of the house was removed and shrubs were planted. Everything worked out well for all of us. The spooky house became a warm and comforting home. इसके बाद क्या होता है, घर के पास जितना भी कचरा रहता है वो सब साफ़ किया जाता है और इस तरह से वो जो डरावना घर रहता है वो क्या हो जाता है, कुछ साफ़ सफाई के बाद बिल्कुल एक कंफर्टेबल घर बन जाता है.